See, in this code, we are going to create a database in SQL using MySQL Python connectivity. Okay. So, what we need at first, we need to import MySQL.connector package. Some lines are there, some instructions are there that will be same for all the MySQL connectivity, MySQL Python connectivities code. After this will be same for all codes. Okay, so you have to understand this only once. एक बार समझ जाओगे सारे कोड्स में ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा. Okay, so at first what we are doing, we are importing mysql.connector. जैसे हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे हम पहले मैथ पैकेज इंपोर्ट किए हैं या फिर मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किए हो तुम लोग ने, तो उसी तरह से mysql.connector पैकेज हमने इंपोर्ट किया. फॉर व्हाट? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द कनेक्ट फंक्शन. ओके, तो कनेक्ट फंक्शन से हम क्या करेंगे, MySQL से पाइथन का कनेक्टिविटी करेंगे. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देना होगा उसके लिए. When you are opening the MySQL, what type of information do we need to give to the MySQL? The password, right? All of you have to write down the password. Why? Because you are using the root user. If you are going to use some other user, you will have to give both the username and the password. So here also we have to give it both, because here the root is not default. When you are using the MySQL, the root is default. Therefore, you don't have to give the username, right? But here we have to give the username as root, password as root, host will be always localhost, as you are using the localhost. Okay? So यहाँ तक समझ में आ गया. MyDB is what? MyDB is the object of the type connector. Okay, तो mysql.connector.connect, इसके अंदर होस्ट हमने दे दिया लोकल होस्ट, यूजर हमने दे दिया रूट, पासवर्ड हमने दे दिया रूट. क्लियर हो गया यहाँ तक. कनेक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट हो गया. अगर तुम गलत यूजर ने पासवर्ड दे रहे हो या फिर MySQL कनेक्टिविटी ठीक तरह से नहीं है तुम्हारे सिस्टम में, यहाँ पे एरर देगा. हो गया. अब हम क्या करेंगे, माई कर्सर. व्हाट इज दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कर्सर. व्हाट इज अ कर्सर? कर्सर यहाँ पे माई कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कर्सर. फॉर व्हाट वी हैव यूज्ड इट? Because we will use this object for two purposes. One is for executing the SQL query. कोई भी हमारा SQL क्वेरी हो, देखो हम लोग डेटाबेस क्रिएट अभी तुम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किए हो MySQL में. yes, ये वाला कोड हम यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, देन नेम ऑफ द डेटाबेस. तो कोई भी हम MySQL का क्वेरी अगर हम पाइथन से एग्जीक्यूट करना चाहें, we need to use this mycursor object. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, mycursor.execute. mycursor.execute के अंदर MySQL का क्वेरी हम लिखेंगे. So for executing MySQL queries, we need the mycursor object. Another purpose is this: when you will do the select queries, you will see there, it also holds the result set also. सिलेक्ट क्वेरी जब करेंगे तब वो तो कुछ आउटपुट देगा ना, तो आउटपुट को होल्ड भी करता है ये MyCursor, मतलब कर्सर का ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये दो पर्पस के लिए हम यूज करते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन? ओके, सिंस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय डेटाबेस 2, I will change the name of the database as mydatabase3. Otherwise, it will give error that the database is already created. Okay. So I am doing here. I am executing this. So here this 3 triple greater than sign comes means the execution is completed now. Okay. Now we will understand how to create the table in our database. See here, up to this everything is same as the previous program. Only the thing is that we have mentioned the database also. ठीक है,
बाकी सारा host, user, password already we had mentioned in the previous code also, but we are going to create a table. For creating the table we have to mention a particular database. हम क्या करते हैं, use database करते हैं ना, तो कौन से database में हम table create करेंगे ये बोलने के लिए we have included the name of the database also here. use database, हाँ, use database, use database से बदले में यहाँ पे database का नाम हम दे रहे हैं. ओके, अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, माई कर्सर इक्वल्स टू mydb.cursor जो पहले जैसे किए थे. माई कर्सर ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, क्यों? बिकॉज़ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द MySQL क्वेरी. क्या MySQL क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे? वी विल क्रिएट अ टेबल. तो क्रिएट टेबल का जो कोड होता है, सेम कोड वी विल डू हियर. वी विल एग्जीक्यूट हियर. देखो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके दिखा रही हूँ. क्रिएट टेबल का यहाँ पे कस्टमर्स नाम का एक टेबल क्रिएट हो रहा है जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक है नेम, दूसरा है एड्रेस. क्लियर? एनी क्वेश्चन? सो वी विल एग्जीक्यूट इट नाउ. टेबल क्रिएशन हो गया. Now what we will do? insert, We will insert the data in the table. Again, up to this the code is same. Up to this the code is same. yes, Okay. Now यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो. What is the query for execute for inserting data in a table? हम लोग MySQL में क्या query लिखते हैं? Insert into table name. yes sir, yes sir. अगर सारे fields में value डालना होता है तो ये वाला optional है. Name, comma, address. You can give or you can omit also. I have given there. Name, comma, address. Then values. उसके बाद क्या डालते हैं हम? Value डाल देते हैं. तो हम भी यहाँ पे direct value डाल सकते थे. Tom, comma, ABCD direct डाल सकते थे. But I haven't done this. I have used this val tuple. ये क्या है? Tuple है. Why I have used this? Because you can modify the program easily by taking input from user. हम हमेशा constant वैल्यू तो नहीं डालेंगे ना, हम यूजर को बोल सकते हैं कि नाम इनपुट करो, एड्रेस इनपुट करो. तो हम क्या करेंगे, जो इनपुट वैल्यू आएंगे जो इनपुट वैल्यू आएंगे उसको एक टपल में हम डाल देंगे और उसको इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. देखो SQL मतलब जो क्वेरी हम यूज कर रहे हैं, वैल मतलब टपल ऑफ द वैल्यूज. कोई इनपुट लेना चाहते हो तो इनपुट लो, कांस्टेंट वैल्यू लेना चाहते हो कांस्टेंट वैल्यू लो. दिस इज अप टू यू. ठीक है? तो हम Ma'am, in that SQL statement, ma'am, we can use dot format function also for inserting of values. It's like yes, you can use any type of string function. Just you have to give the strings to it. yes, ma'am. कोई भी फॉर्मेट यूज करो, कोई भी फंक्शन यूज करो, इसके साथ आउटपुट स्ट्रिंग होना चाहिए. Yes, ma'am. Output is Okay. So this is the SQL query. This is the set of values. हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कैसे? SQL query comma the set of values. ठीक है? तो वन हो गया इंसर्शन. नेक्स्ट फिर से हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं Yes. या फिर कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं. फिर सेट ऑफ वैल्यू ये है, क्वेरी सेम होगा ना, query क्वेरी is विल same. बी सेम. सेट ऑफ वैल्यू डिफरेंट हो गया है, फिर से इंसर्ट कर दिया. दो रो इंसर्ट हुआ है इसमें. कमिट का मतलब क्या है? ये कमिट वाला जो स्टेटमेंट है
कि पहले जो डेटाबेस क्रिएशन का कोड था और टेबल क्रिएशन का कोड था उसके एंड में भी तुम लोग दे सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमिट स्टेटमेंट? हम बफर में चला जाता है जो भी डेटा है, फिर बफर से डायरेक्ट डेटाबेस में चला जाता है। पहले हम लोग जब डेटा कुछ देते हैं या फिर कोई भी चेंज करते हैं वो परमानेंटली नहीं जाता है डेटाबेस में, बाद में कुछ टाइम लगता है उनको, या फिर हम जब कमिट करते हैं या फिर हम जब एसक्यूएल से निकल रहे हैं एग्जिट क्लिक तब होता है। सो इफ यू आर नॉट exiting the SQL in a proper way, or if you are not writing this commit function, then you will be not sure that all the things I have changed, I have updated in the database, that will be written inside the database. So for guaranteeing that you are executing this, ये कमिट जो लिख दिया, हो सकता है इसके पीछे भी कुछ और कोड हो तुम्हारा, लेकिन ये जो कमिट लिख दिया इसके बाद अगर सिस्टम अचानक शटडाउन हो जाए या फिर प्रोग्राम क्रैश हो जाए तब भी डेटाबेस में डेटा तुम्हारा रहेगा, इसका गारंटी है। तो जब भी तुम लोग डेटाबेस में कोई भी अपडेट कर रहे हो, यू शुड यूज दिस कमिट फंक्शन। ओके, तो हम लोग इसको हम लोग कमिट की जगह पे तो काउंट डॉट मतलब क्लोज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऊपर डेटाबेस को फ्री कर देते हैं। हां, कमिट अलग होता है, क्लोज अलग होता है। क्लोज मतलब तुम्हारा काम खत्म, कनेक्शन क्लोज कर दिया, कनेक्शन क्लोज कर दिया, डेटाबेस नहीं। डेटाबेस का भी क्लोजिंग होता है। कमिट एक प्रोग्राम में तुम 3-4 बार भी डाल सकते हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा 4-5 टर्निंग पॉइंट्स हैं प्रोग्राम का, बड़ा कोड लिख रहे हो तो तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया कमिट डाल दिया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम किया कमिट डाल दिया, ऐसे भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम। डेटा इंसर्शन हो गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, डेटा को देखेंगे सिलेक्ट क्वेरी करके कि वेदर दे हैव इंसर्टेड प्रॉपर्ली और नॉट। यहाँ पे कुछ चेंज करके मैं करवाई थी, मैं एक एक करके कर रही हूँ। हम लोग देखो यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। तो ऑल डेटा अगर हम देखना चाहते हैं तो हम कौन सा क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार और मास्टर, ठीक है। अब डेटा देखने के लिए, डेटा फेच करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है फेच वन और दूसरा है फेच ऑल, ठीक है। एक है फेच वन और दूसरा है फेच ऑल। फेच वन क्या करता है, एक एक करके रो को फेच करता है, ठीक है। तो हमारे पास दो रोज थे, एक था टॉम दूसरा था जेरी, राइट। तो पहले हम जब फेच वन करेंगे तो टॉम वाला रिकॉर्ड आएगा, हम लोग डिस्प्ले जब करेंगे हम लोग देखेंगे कि टॉम का रिकॉर्ड आ रहा। नेक्स्ट टाइम फिर से जब फेच वन करेंगे तो हमारा जेरी का रिकॉर्ड आएगा, हम लोग प्रिंट करेंगे देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे जेरी का रिकॉर्ड आ रहा है। थर्ड में तो कोई डेटा हमने डाला नहीं है, फिर भी हम फेच वन कर रहे हैं तो देखेंगे नाम आएगा, मतलब डेटा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फेच वन काम करता है। इसको अभी नहीं चाहिए हमारा, बाद में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो टॉम जेवी नन, ठीक है। फेच वन समझ में आया। अब हम यहाँ पे फेच वन के बदले में फेच ऑल करेंगे। यहाँ तक हमने कमेंट कर दिया। ये वाला पोर्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे। फेच ऑल का मतलब है कि जितना रिकॉर्ड्स है पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड, तो कैसे आएगा, दैट विल बी
टपल्स। मतलब हम लोग ये समझने के लिए यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट भी किया है, देखो we will see that this is a list of tuples। मतलब एक लिस्ट है जिसका फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा एक टपल जैसा, मतलब टॉम कॉमा एबीसीडी एक टपल में आएगा, कॉमा नेक्स्ट टपल में नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। अब लिस्ट ऑफ टपल्स हो या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो, कुछ भी हो, हम लोग लिस्ट को ट्रैवर्स करना जानते हैं। Yes, ma'am. तो कैसे हम लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं? फॉर एक्स इन लिस्ट, ऐसे करते करते हैं। Traversing. तो हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा लिस्ट को एक साथ प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ टपल्स को देखेंगे, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड्स को अलग अलग से प्रिंट कर रहे हैं। रो काउंट क्या करेगा, पहले हम रो काउंट क्यों नहीं किए थे, बिकॉज वी नो दैट ओनली वन रिकॉर्ड विल कम आउट। हम एक एक करके प्रिंट कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि मास्टर सेल के अंदर कितना रोज आए हैं, ऑब्वियसली 2 रोज आएंगे। Yes, ma'am. सो लेट अस एग्जीक्यूट इट। देखो पहले ये है लिस्ट ऑफ टपल्स, वो एक साथ जो प्रिंट किया था वो वाला। देन अलग अलग जो प्रिंट कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर, एक एलिमेंट करके, एक रिकॉर्ड करके। और यहाँ पे नीचे रो काउंट से क्या दिखा रहा है, 2 रिकॉर्ड्स फाउंड। यहाँ पे जो आउटपुट है ये तुम लोग जब प्रोजेक्ट करोगे तुम्हारे पास तो अलग से टपल के अंदर आउटपुट आ ही रहा है। नाउ यू डू सम Iteration. something, you do some changes here और in a formatted way में आउटपुट को दिखाना अच्छे से सुंदर करके सजा। ठीक है, सबको समझ में आया है डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड? ओके।